Hello students, good evening. So today we are going to discuss something called as solutions of trigonometric equations. So what exactly do we mean to say? This is very important. As we have started studying trigonometry right from 9th standard. So in 9th we studied trigo, in 10th again we studied trigo, then in 11th we came in to discuss a lot of topics related to trigonometry, right? There were many things which we did try to understand, but exactly we had never ever thought about trigonometric equations with the consensus that it really needed that it really is needed to be gone across. So let's try to understand exactly what do I mean by saying trigo equation and what exactly is the term solution mean for trigo equations. Okay, so I'll just write something. Just look here. If I write simply sine x, this is trigo ratio. Okay, this is trigo ratio. If I write sine x plus 4 or say sine x plus cos x, suppose if I write it like this, okay, right? So these two sine x plus 4 and sine x plus cos x, these are trigo functions. So these are not trigonometric ratios. No. This is sum of two trigonometric ratios, and this is a trigonometric ratio and a constant term, right? However, these three can be called as trigo functions, right? But trigonometric ratio is going to be only this. These two are not trigonometric ratios. These are trigonometric functions. Now suppose if I just do one small thing and this entire scene will change, right? See, if suppose I come up here and write here, say this is 0, sin x is equal to 0. Now this whole stuff, this entire line is now, trigo equation. I hope you have understood. Similarly, if I come to write it in this way, sin x plus 4 is equals to say tan x. Now how about this entire line, this entire thing? Now this is trigo function. No, yes, no, no, yes, no, what? This is not the trigo function now. Why? Because now this will become trigonometric equation. Got it? Okay, so trigo function is converted to trigo equation. Trigo ratio is converted to trigo equation. Even this can be converted in a similar fashion, right? I can write here is equals to square root of 2. Gone. Okay, right? So this will also be the trigonometric equation, correct? And this is what is needed to be understood properly, right? Okay, let's. So when the trigonometric terms are brought together with the help of some arithmetic operators and is equated with some other stuff, then we say stuff. By stuff I mean any function. Okay, any value. It can be constant, is also a type of function. So any value, if it is equated to, we call that as trigonometric equation. An equation which is formed by trigonometric ratios. Such an interesting topic to handle across, right? So, whenever we see equation thing, understand this. Whenever we see something called as equation, we always start thinking about solving it up. Does this mean? This means an equation is always solved. Getting it? Right? So what does the process of solving mean? Solving का मतलब क्या होता है sir? Solving means finding the value of variable. Right? Solving means finding the value of variable, and that value, finding the variable, I'll write it चलो variable value यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं. Finding the variable value. This variable's value is very important. It is the purpose why we solve the equation. अगर हमको ये नहीं चाहिए होता तो we would not have solved the equation, right? So what we will do is we'll call this as something. What is this called as? This is called as solution. What? This is called as solution. So what does the term solution mean? Solution means the value of variable in the equation. So here what is variable, you tell me?
Here x is variable, x is variable, x is variable, x is variable, x is variable. So all the trigonometric equations have a variable, and what do? We solve the entire equation to get the value of x. Getting it? Right? So here x is the solution of trigonometric equation. X is the solution of trigonometric equation, a very important concept, right? So in this case, we are the ones who want x. Now start looking at x with care, with concern. You will come up with two things. One, x is variable. If I find the value of x, I get solution. Second, x is an angle. X is an angle. Trigonometric equations take x as input. When we solve, we get x as output. Yes, right? So this x itself is the solution, and x itself is the angle. What does this mean? That whenever we solve a trigonometric equation, what we get as solution is always the angle. Got it? Right? So whenever we solve a trigonometric equation, we will always get a solution which is nothing but angle. Such an interesting thing, right? Yes. So whenever you solve a trigo equation, you will get the solution which is nothing but angle, right? Sure. Let's move to the next point here. Sir, angle. Okay, I agree, right? Yes. थोड़ी देर के लिए इसको हम रहने देते हैं. And let us try to understand what exactly angle is all about. अगर मैं आपसे एंगल की बात करूं in general, what do you do when you look at angle? Right? You do nothing but, look here, I'm drawing an angle. If I say this is the angle which measures 45 degree, right? So can you guys tell me what exactly is the measurement of this angle? Yes sir, अभी तो आपने बोला, yes, right now you have said what? 45 degree. So its measure must be 45 degree, but if somebody comes up and says no, it's not 45 degree, it's actually 405 degree. Can you deny? I am saying it's 45 degree and you come up with an answer called as 405 degree. Can you deny? You cannot deny. You cannot deny. Or I can also stand up and say, sir, this is nothing but minus 315 degree. Again, I can't deny. Right? The same angle has got multiple measurements. Now see, suppose if somebody stands up and says, no, sir, no, it's wrong. Again, I want it to be called as 765 degree. Is there anything wrong into it? What exactly is happening? An angle has infinite number of measurements. So what? Yes. Understand this. An angle has defined but infinite number of measurements. What am I trying to say? An angle has defined. एक होता है something which you cannot measure. That is called as undefined, immeasurable. It is measurable. It is defined, but infinite number of measurements. Wow. That is why we derived the concept of coterminous angle. You must be knowing something about coterminous angle. There is something called a circular angle, right? So we are going to discuss coterminous angle and circular angle in the next slide, right? Just make one statement for yourself that understand this, the angle has got defined but infinite measurement. If the angle has got defined but infinite measurement, it means every trigonometric equation has defined but infinite solutions. Every trigo equations has defined but infinite solutions. There are many solutions. However, it will be defined by some or other method. Clear? Right? So such measurements are called as coterminous angle ka measurement. Coterminous means when the terminal arm of the angle coincides. This is what we have studied in 11th standard, very detailed. Right? So after this, in the next slide, we are going to
understand the concept of circular angle and generalization, right? This is something called as solution, right? Okay, so see you in the next slide. ये तो पता ही होगा, ऐसे जैसे कि हम लोगों ने पहले से डिस्कस करके रखा हुआ है कि बेसिकली हम लोग को टर्मिनस एंगल्स की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना? तो यहाँ पे ये दो एंगल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, चाहिए तो एक हो गया, दिस इज नॉट वर्किंग सो लेट मी राइट इट विद ब्लैक इटसेल्फ, एक हो गया को टर्मिनस एंगल, है ना, जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी भी देखा। और एक सोचने वाली चीज है कि दुनिया का जो हर एंगल होता है ना, दैट इज सर्कुलर एंगल। मतलब कि दुनिया में जितने भी एंगल्स होते हैं दे आर सर्कुलर इन नेचर। ये चीज हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव होता है ना? याद है ना? राइट। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर कंसेप्ट, है ना? राइट। कैसे बनेगा सर? बहुत सिंपल सा काम है। मैं एक एंगल लूंगा और उसका प्राइमरी, उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे फिक्स करूंगा, उसका जो प्राइमरी और फिक्स्ड आर्म है उसको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रखता हूँ, और उसके बाद में सेकंड जो आर्म है जो इसके साथ में था उसको मैं ऐसा खोलना चालू करूंगा। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो मेरे ऊपर ऑप्शन है, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी खोल सकता हूँ और क्लॉकवाइज। जैसे हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलना शुरू किया तो देखो क्या होगा एक्चुअली, है ना? यहां से शुरू होगा वो आर्म, ऐसा ऊपर जाएगा तो आई विल रीच एट दिस पॉइंट, है ना? द सेकंड आर्म विल, द सेकेंडरी आर्म विल रीच एट दिस पॉइंट। अभी ये एक एंगल हो गया, मान लो ये 45 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा मैं इसको और घुमाऊंगा तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहुंचेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। और घुमाऊंगा सर, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और घुमाऊंगा 180 डिग्री, समझे नहीं समझे? यहाँ पे आएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, और घुमाऊंगा तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा वापस घूम के। ये सुनो, राइट। और ऐसे ही मैं इसको घुमाते जाऊंगा तो मुझे नया नया साइकिल मिलता जाएगा। तो ये जो एंगल 45 डिग्री है ये फर्स्ट साइकिल में। हाउ अबाउट सेकंड साइकिल? कभी आपने सोचा? इसका मतलब यही जो वाला जो एंगल है, सेम एंगल जो कि मैं अभी 45 डिग्री देख रहा हूं, है ना? जैसे ही मैं घूम करके वापस आऊंगा, जैसे ही मैं घूम करके यहां से घूमूंगा और घूम करके वापस आऊंगा तो ये 360 प्लस 45 हो जाएगा। फिर मैं पूरा ऐसा घूमूंगा वापस यहाँ पर आऊंगा तो 720 प्लस 45 हो जाएगा। और ऐसे में घूमते जाऊंगा तो यही एंगल, सेम एंगल अलग अलग वैल्यूज लेता जाएगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, राइट? कि कैसे हमारा सेम एंगल अलग अलग वैल्यूज ले रहा है, राइट? यस। तो अभी जरा आप यहाँ पर देखो, ये जो एक्स एक्सिस का पार्ट है यहाँ पर, ये 0 डिग्री पे है कि नहीं है, ये 90 डिग्री पे है कि नहीं है, ये कितने पे, 180 पे, और ये कितने पे, 270 पे, एंड सो ऑन। तो एक काम करते हैं, इसको जरा हम लिखते हैं, ठीक है ना? और जरा देखते हैं हमको मिलता क्या है। तो सर ये 0 है, राइट? ये कितना है, ये कितना है सर? ये π/2 है। अच्छा सर ये कितना है, ये कितना है? ये पाई है, पाई। अच्छा ये कितना है सर? ये 3π/2 है। ये सुनो, राइट? अच्छा ठीक है सर, वापस आ जाइए जरा। तो ये कितना हो गया अभी? 2π, सेकंड साइकिल शुरू हो गया। अच्छा ऊपर आ जाओ जरा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर? 2π प्लस π/2 मतलब 5π/2, है ना? पक्का? अच्छा यहाँ पे आ जाइए सर, ये हो गया 3π, 6π/2, ये 7π/2। एक क्वाड्रेंट π/2 होता है, मतलब अगर आपको यहां से यहां आना है तो 2π/2 आपको ऐड करना पड़ेगा। आप यहां से आ जाओगे, यहां से अगर आपको यहां आना है तो 3π/2 ऐड करना पड़ेगा। यहां से वापस घूम के यहां आना है तो 4π/2 ऐड करना पड़ेगा, लाइक दैट इट इज। ओके, तो अभी यहां पर आप आओगे तो ये कितना हो जाएगा सर? सर ये 4π हो जाएगा। यहाँ पे आगे जाओ तो 4π प्लस π/2, जैसे प्लस π/2 करोगे यहाँ पर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस इज गोइंग टू बिकम 9π/2। यहाँ पे आओगे तो कितना हो जाएगा मालूम है? जल्दी बोलो, ये कितना हो जाएगा सर? ये 5π हो जाएगा। ये सर ये 11π/2 हो जाएगा।
ठीक है, और साइकिल कंप्लीट हुआ। इस तरह से 3 साइकिल। तो हर साइकिल में देखो इसका वैल्यू अलग अलग है। इसमें फर्स्ट साइकिल में इसका 0, π/2, पाई, 3π/2। सेकंड साइकिल में 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, है ना, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं, बड़ा मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूं तब क्या होगा, ये पूरे सिनेरियो को मैं अभी तुम लोगों के सामने जनरलाइज करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो जनरलाइज करते हैं। तो अभी ये देखो, इसको आप ध्यान से देखो। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं आगे बढ़ाऊं आगे बढ़ाऊं आगे बढ़ाऊं तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि इसको मैं 2n π बोल सकता हूं? सर 2n π मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कैसे, ये देखो 0, 2, 4, अगला 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे करते करते हमको 2n π मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अच्छा सर इसको जरा बढ़ाते हैं आगे, चलो बढ़ाओ। देखो ये पूरा एपी है, ये भी एपी है, ये पूरा एपी था, इसको मैंने a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा दिया। ये भी एपी है, और बाय द वे इनके बीच में 4π/2 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 का अंतर है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एपी का जो लास्ट टर्म होता है tn निकालने का फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d, है कि नहीं? राइट। तो a कितना है सर? π/2। ये देखो a कितना है? π/2, प्लस आपको nth टर्म चाहिए तो n - 1 × d बोले तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2π। समझे नहीं समझे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? π/2 + 2n π - 2π। और फिर इसको आप आगे भी सॉल्व करोगे तो आपको सब चीजों को सॉल्व करके वैल्यू मिलेगा। खैर वो सब बाद में निकालते रहना, मैं आइडिया बता देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बिकम, दिस इज π/2 की अगर मैं बात करूं, सो इट इज एक्चुअली 4n + 1 π/2। देख लो, दिस इज 4n + 1 π/2। यहां पे आ जाओ, यहां पे, तो इसको आप कंटिन्यू करते चले जाओ ऐसा, यू विल गेट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल कैसे लिखते हैं सर? 2n + 1 π/2। इसको सर कैसे लिखेंगे? इसको यहां पे आ जाओ, 4n + 3 π/2, 4n + 3 π/2। यानी कि ये जो मैंने लिखा है ना, n के फॉर्म में जो मैंने लिखा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको n का फॉर्म समझ में आना बहुत जरूरी है। ये जो सिचुएशन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो जरा कैसा, ये 2n π, ये 4n + 1 π/2, ये क्या है? 2n + 1 π/2, और ये क्या है? 4n + 3 π/2। ये हमने एंगल और मेजरमेंट में सीखना था। ये एंगल एंड मेजरमेंट का पार्ट है, बहुत स्पेशल पार्ट है। ये हमको तभी सीख लेना चाहिए था जब हम एंगल और मेजरमेंट 11th स्टैंडर्ड में कर रहे थे। तो ठीक है, बराबर। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना चाहता हूं θ = 2n π। समझे कि नहीं समझे? जब भी एंगल आपका 2n π होगा तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो θ = 4n + 1 π/2। समझे नहीं समझे? दिस इज अबाउट ऑल दी साइकिल्स, दिस इज अबाउट ऑल दी साइकिल्स। हाँ, आपको n का वैल्यू बदलते जाना है, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। n का वैल्यू 0 डाल के देखो, π/2 आएगा। n का वैल्यू 1 डालो, 4 + 1 5 π/2 आएगा। n का वैल्यू 2 डालो, n π/2 आएगा। n का वैल्यू बदलते चले जाओ, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी है 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये क्या है? 4n + 3 π/2। ये जो हमको ये जो वैल्यूज मिल रहे हैं, ये जो n वाले वैल्यूज जो मिल रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल वैल्यूज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जनरल वैल्यू बोलने का मतलब क्या होता है? जनरल वैल्यू बोलने का मतलब ये होता है कि ऐसा वैल्यू जिसमें अगर मैं n का वैल्यू बदलते चले जाऊं, n का वैल्यू बदलते चले जाऊं, तो मेरे को अलग अलग वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। सर n कौन है? इस केस में जो आपने n, ये जो यहाँ पे बार बार n लिखा है, n है कौन? सर n कोई एक नंबर है? नहीं, n कोई एक नंबर नहीं है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ, सुनना, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स। क्या बोला मैंने? n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स। ये मैं आप लोग को एंगल्स का गेम दिखा रहा हूं कि आप लोग जो एंगल देखोगे ना, वो एंगल इसी तरह से लिखा हुआ होगा।
गेटिंग माई वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग, राइट। एन क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं क्या, वेयर वेयर एन इज द नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स। क्या मजेदार बात है, where n is the number of completed cycles. Please note this down. Note this diagram very carefully. It is very very special diagram. आप लोग ये डायग्राम पहले बनाओ एकदम टॉप में, ठीक है, ये लिखना है, ये तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इट इज नॉट द पार्ट टू बी रिटन। ये आप नहीं भी लिखोगे तो मेरे को चलेगा, तुमको भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लिखना है और लिखने के बाद में डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। Please do this. Recording people will stop, pause the recording and then do it. Just pause the video and then write. Now let us look at this very very interesting situation. It is special in itself due to many reasons, okay? Right? We'll just try to examine those reasons which make this diagram very special. देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, दिस इज माई नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के वैल्यूज हैं, राइट, ये वाई एक्सिस के वैल्यूज हैं, एंड दिस थिंग्स आर देयर। मैंने यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस का एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पे वाई एक्सिस का एक ब्लॉक बनाया। व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्चुअली डू। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ पर है, ये रहा, यस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ कंडीशन। और जब मैं कोई भी कंडीशन लिखता हूं तो मैं उसको इक्वेशन बोलता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कंडीशन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कंडीशन क्या है कि इस पर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई होता है, यस और नो, राइट। सो इसका इक्वेशन हो जाएगा थीटा is equals to 2n pi। ये किसका इक्वेशन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। तो सर नेगेटिव एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, बराबर ना, राइट, पक्का। अच्छा इसका एक मतलब है, लेट अस ट्राई टू एनालाइज दैट स्मॉल सेंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सर मैं पूरे एक्स एक्सिस की बात करूं तो पूरा एक्स एक्सिस मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई, ये सुनो, राइट। तो एक्स एक्सिस का मतलब एक्चुअली होता है, एक्स एक्सिस का मतलब एक्चुअली होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 पाई कंप्लीट कर लिया तो वापस से आप एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे, वापस आप पाई कंप्लीट कर लीजिए, फिर वापस आप एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे, फिर आप पाई कंप्लीट कर लीजिए एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे, फिर आप पाई कंप्लीट कर लीजिए एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे। आप जितना पाई कंप्लीट करते चले जाओगे उतनी बार एक्स एक्सिस पे पहुंचते पहुंचते चले जाओगे। हाँ, खाली फर्क इतना है कि हर बार आप ऑल्टरनेट साइड पे जाओगे, एक बार आप पॉजिटिव साइड में जाओगे, एक बार आप नेगेटिव साइड में जाओगे, लेकिन जाओगे एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि इन दोनों जगहों पर ऑन एट ऑल एट दीज टू प्लेसेस n का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल, लेकिन यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल नहीं होता है, इसका मतलब जस्ट पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, दिस इज हियर n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल, बट यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल नहीं है। आप चाहो तो इसको m पाई भी लिख सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू m पाई, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हियर m इज अ होल नंबर, क्या यहाँ पे m क्या है, होल नंबर, क्या है, होल नंबर। अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए,
अगर मेरे को यहां से यहां जाने का है तो मैं पाई ऐड करूंगा, फिर यहां से यहां जाने का तो पाई ऐड करूंगा, फिर यहां से यहां जाना है तो पाई ऐड करूंगा, पाई ऐड करूंगा, पाई 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 पाई, है ना, राइट। अब जरा समझो, अगर मैं पाई पाई ऐड करते जाऊंगा तो मैं एक्स एक्सिस पे चलता जाऊंगा, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं पाई बाय 2 दो बार ऐड करते जाऊंगा, पाई बाय 2 दो बार मतलब 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, है ना, बराबर, यस की नो, है ना, 2 पाई बाय 2, मैं तुरंत एक्स एक्सिस पे चले गया, वापस 2 पाई बाय 2 एक्स एक्सिस पे आ गया। तो एम पाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दिस एम पाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स एम पाई बाय 2। देखो 2 2 कैंसिल होके यही बचता है, 2 2 कैंसिल होके लास्ट में सेम बात है, इसलिए मैंने इक्वल टू लिखा है। पर ये कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए है कि अगर मैं पाई में बात करता हूं, पाई में तो इट इज एम पाई, अगर मैं पाई बाय 2 में बात करता हूं तो 2 एम पाई बाय 2। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो ये 2 एम पाई बाय 2 हो गया, यहाँ पे एम पाई होगा, पाई ऐड करना है तो एम टाइम्स, पाई बाय 2 ऐड करना है तो 2 एम टाइम्स, सिंपल है, एक ही बात है, राइट। सो यहां पर अगर मैं बोलूं कि एम कौन है, एम कौन है ना, तो यहाँ पे दो बातें, सर एम कौन है, एम एक होल नंबर है, एम एक होल नंबर है, और एन कौन है, एन कौन है, एन इज नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स, एग्रीड और नॉट। एक काम करते हैं, मैं इसको भी ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक कॉर्नर में डाल देता हूँ सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, ये बेटर वे है ना, तो ये आपकी इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा, उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ जाते हैं, बड़ा मजा आएगा, देखो समझो चीजों को। अब जरा इसके लिए भी सेम चीज बनाते हैं और देखते हैं क्या बनता है ना। सो लेट अस गो फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस, बोलिए पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2, और इसके लिए थीटा इज इक्वल्स टू 4n प्लस 3 पाई बाय 2, ये सुनो, बराबर है ना। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए सर ये हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए ये हो गया, राइट। अब देखो कितना मजेदार चीज है यहाँ पर, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको जरा देख कर देखो। तो वी विल मूव टू दिस पॉइंट नाउ, इसको जनरलाइज करके यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस का मतलब क्या, वाई एक्सिस का इक्वेशन सर क्या बनेगा, अब जरा देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाई एक्सिस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये तो जीरो है ना, तो वाई एक्सिस जाने के लिए पाई बाय 2 ऐड करो, उसके बाद फिर पाई बाय 2 ऐड करोगे तो एक्स पे आ जाओगे, तो आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक और पाई बाय 2, तो यहां से यहां जाने के लिए एक पाई बाय 2 और उसके बाद 3 पाई बाय 2, ये देखो 1 2 3 3 क्वाड्रेंट ना, तो 3 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 11, कैन यू सी दिस, ये सुनो, ये सुनो, यानी वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का मतलब होता है सर पाई, अगर मैं पूरे वाई एक्सिस की बात करूं तो उसका मतलब होता है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, देख लो 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसको ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट 2n प्लस 1 पाई बाय 2, कैन यू सी दिस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ना, ऑड मतलब 2n प्लस 1, तो y एक्सिस के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखने जाता हूं तो आई राइट हियर थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाय 2, 2m प्लस 1 पाई बाय 2, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, 2m प्लस 1 पाई बाय 2, आई होप इट इज अंडरस्टूड, क्लियर है बात, पक्का, yes, so theta is equals to 2m plus 1 pi by 2, this is y axis, this is, वहां पे भी सेम, m का मतलब क्या होगा सर, m का मतलब कंप्लीटेड साइकिल नहीं होगा, n का मतलब कंप्लीटेड साइकिल, यहाँ पे जो दोनों है ना हमारे पास, ये दो n जो दिए हुए हैं, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस को देखो, कैन यू सी दैट, है ना, हमने देखो यहाँ पर n लिखा हुआ है और यहाँ पर भी n लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, ये जो n है ना, n वो है नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल,
और जो m है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, है ना, x एक्सिस पे लिखा है, y एक्सिस पे लिखा है ना, m लिखा है ना, m 2m + 1, यहाँ पे 2m, तो m क्या है, m कोई भी होल नंबर है, m क्या है, कोई भी होल नंबर है। अब से याद रखना, आप क्या याद रखोगे, बोलो, x एक्सिस का मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई, x एक्सिस का मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई, y एक्सिस का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, y एक्सिस का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, x एक्सिस का मतलब एनी मल्टीपल ऑफ पाई। प्लीज नोट दिस डाउन, ये पूरा आप लोगों को लिखना है। वैसे डायग्राम आप लोगों ने पहले से बना के रखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा रखा है, तो अगर तुमको लिखना है तो सिर्फ x एक्सिस के बारे में लिख दो, y एक्सिस के बारे में लिख दो, और ये कॉमन बात लिख दो, कॉमन बात, ठीक है। इसको वेयर करके लिख देना, जहां भी लिखना वेयर, जस्ट नोट दिस डाउन। Recording people can pause their video and note, just pause your video and note, pause it up। यस बच्चा, बड़ा अच्छा चीज हम लोगों ने समझ लिया, और उसके हिसाब से मेरे को एक बात समझ में आई है, मैं तुम लोगों के साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ, और तुम लोग मुझे कोऑपरेट करोगे, ठीक है ना। सर क्या है वो बात, मैंने ये समझा है कि एंगल के पास इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं। क्या समझा मैंने, एंगल के पास कितने वैल्यूज होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन ध्यान से समझना, एंगल्स के पास इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं। कैसी वैल्यूज होती है, इनफाइनाइट, लेकिन ये जो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है ना, डेफिनेट होती है, इनफाइनाइट बट डेफिनेट वैल्यूज। डेफिनेट का मतलब सर, डेफिनेट का मतलब जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब कुछ भी वैल्यू होगी ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 45 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, एक 45 होगा, नहीं तो फिर 2n पाई प्लस 45 होगा, नहीं तो फिर 4n पाई प्लस 45 होगा, नहीं तो फिर 6n पाई प्लस 45 होगा, लेकिन उनमें से कुछ होगा, इसलिए मैंने डेफिनेट लिखा हुआ है। एक होता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब आपको पता ही है, कुछ भी है, हमको पता है, लेकिन बहुत सारी वैल्यूज है उसमें से इनफाइनाइट। अच्छा सर, ये बहुत सारी वैल्यूज में से एंगल एट अ टाइम क्या सारी वैल्यूज ले लेता है क्या, नहीं, एंगल एट अ टाइम एक ही वैल्यू लेता है, एंगल एट अ टाइम एक ही वैल्यू लेता है, और वो जो एंगल का एट अ टाइम एक ही वैल्यू है उसको मैं बोलूंगा एंगल्स का वैल्यू। एंगल्स वैल्यू एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन whom, ये जो पूरा वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स, किसी चीज पे डिपेंड करता होगा ना, किस पर डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है साइकिल पर। किस पर, साइकिल पर। हम कौन से साइकिल में हैं ये डिसाइड करता है कि एंगल का वैल्यू क्या होगा। जैसे फर्स्ट साइकिल में एंगल का वैल्यू 45 डिग्री, सेकेंड साइकिल में आप चले जाइए तो एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 2 पाई प्लस 45, मतलब 360 प्लस 45 405। थर्ड साइकिल में क्या हो जाएगा 720 प्लस 45। फोर्थ साइकिल में क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, आप बढ़ाते जाइए वो बढ़ते चले जाएगा 1080 प्लस 45 एंड सो ऑन, है ना। तो इसका मतलब एंगल का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, साइकिल के ऊपर। अच्छा सर, ये एंगल कौन है, ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमारे पास होता है उसके सोल्यूशन का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, साइकिल पर, राइट। तो दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में ये बात बिठा लो आप लोग कि जो हम सोल्यूशन देखते हैं वो सोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालते हैं तो वो सोल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, एक तो इक्वेशन पर, दूसरा साइकिल पर, क्योंकि साइकिल से ही हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। जब तक हमको साइकिल नहीं पता है हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पक्का। यस। अब एक सवाल, किसी भी एंगल की अगर मैं बात करूं, किसी भी एंगल की बात, तो एंगल बनाने के लिए मैं कितने साइकिल का इस्तेमाल कर सकता हूं सर, कितने भी साइकिल का इस्तेमाल कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा कितना साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 8 साइकिल, 10 साइकिल, 100 साइकिल, मैं कितना भी साइकिल बनाऊं
साइकिल मतलब इसको घुमाऊं फिर यहीं छोड़ दूं, एक साइकिल कंप्लीट, फिर घुमा के वहीं छोड़ दूं, फिर घुमा के वहीं छोड़ दूं, फिर घुमा के, है ना? ऐसे मैं कितने साइकिल बना सकता हूं सर? इनफाइनाइट साइकिल्स, कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरी मर्जी, राइट? तो मैं एन नंबर ऑफ साइकिल, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एंगल का वैल्यू इनफाइनाइट है, क्योंकि मैं इनफाइनाइट साइकिल बना सकता हूँ। लेकिन मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी साइकिल चलेंगे, बट कम से कम आपको कितना साइकिल रिक्वायर्ड है? मिनिमम हाउ मेनी साइकिल्स आर नीडेड? अगर मेरे को एक एंगल बनाने का है तो कम से कम आपको कितना साइकिल चाहिए? कम से कम इस एंगल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू इसका सर, इस एंगल का मिनिमम वैल्यू कितना होगा सर? 45 डिग्री। इस एंगल का दिख रहा है, यही सेम एंगल है ना? इसके अलावा मर्जी है, 360 प्लस 45 भी हो सकता है, 720 प्लस 45 भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट कम से कम मिनिमम एक वैल्यू तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। यस कि नो? समझ में आ रही बात? तो कम से कम इसका 45 डिग्री वैल्यू ये वाले एंगल का रहने वाला है, राइट? जब आप मेजर करने जाओगे तो अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई है कि किसी भी एंगल के लिए कम से कम एक साइकिल का होना जरूरी है। किसी भी एंगल के लिए कम से कम एक साइकिल का होना जरूरी है, बराबर ना? राइट? तो अभी मैं तुम लोगों को एग्जांपल दो, ध्यान देना। मिनिमम 1 साइकिल, ये लो मैं लिख लेता हूं, मिनिमम 1 साइकिल, मिनिमम, ठीक है? अभी जरा एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं तुम लोगों के सामने एक केस लिखने जा रहा हूं, उस केस को जरा समझो। मैं यहाँ पे लिखूंगा sin x इज इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0, बराबर है ना? यस कि नो? अब मेरा सवाल, sin x 0 कब कब होगा? इस डायग्राम को देखकर बताओ, sin x 0 कब होता है? सर जब x का वैल्यू 0 होता है तो sin x का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा 0, सबसे पहला वैल्यू। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, साइन का, जब x का वैल्यू पाई होगा, पाई, तो वापस से साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू पाई भी होगा। अब जब x का वैल्यू घूम के आके 2 पाई होगा तो वापस से साइन x का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब 3 पाई होगा तो साइन x का वैल्यू 0 आएगा। जब 4 पाई होगा तो साइन x का वैल्यू 0 आएगा। जब 5 पाई होगा तो साइन x का वैल्यू 0 आएगा। मतलब कि अगर मैं साइन का वैल्यू ऐसा, x का वैल्यू ऐसे करते जाऊं कि मुझे x एक्सिस मिले, तो ऑटोमेटिकली साइन का वैल्यू 0 होता जाएगा। यस कि नो? बराबर है? वो डिपेंड करता है कि मैं कौन से साइकिल में मेजर कर रहा हूं। उसमें से ये पूरे जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखे हैं, है ना, इसका फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या होने वाला है सर? इसका लास्ट वैल्यू n पाई होगा, n पाई, देख लो ना, 0 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे n पाई लिख दिया, है ना, वेर n इज नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स, कंप्लीटेड साइकिल्स, n इज नंबर ऑफ कंप्लीटेड साइकिल्स। कितना? जब ये पहले साइकिल में होगा तो n का वैल्यू कितना होगा सर? जब वो फर्स्ट साइकिल में होगा, फर्स्ट साइकिल में, तो n का वैल्यू कितना होगा? 0। सर क्यों? आप तो अभी बोले कम से कम एक साइकिल चाहिए, तो n का वैल्यू कम से कम 1 होना चाहिए। नहीं नहीं, n का वैल्यू गोइंग ऑन साइकिल नहीं है, कंप्लीटेड साइकिल है। जब पहले साइकिल में होगा तो उसने, पहला साइकिल चल रहा होगा और उसने कंप्लीट कितना किया? 0 साइकिल। फर्स्ट साइकिल में कंप्लीट उसने 0 साइकिल किया। सेकंड साइकिल में जब वो एंट्री करेगा तो कंप्लीट 1 साइकिल किया उसने ना, तभी तो सेकंड में एंट्री किया उसने। थर्ड में जब वो एंट्री करेगा तो कंप्लीटेड 2 साइकिल। तो ध्यान रखो, कंप्लीटेड साइकिल्स इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है उसका मतलब यहाँ पे कंप्लीटेड साइकिल हो रहा है। लेकिन हालांकि आप इसको और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इस केस में वो जरूरी नहीं है कि कंप्लीटेड साइकिल हो। इसका रीजन हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है, पहले पढ़ा था हमने n का वैल्यू, तो इसलिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे m पाई लिख सकते हो, m पाई। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू सब कुछ नहीं होगा, n का वैल्यू होल नंबर होगा, n का वैल्यू होल नंबर होगा। अब कोई भी n का वैल्यू डालो, 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि देखो फर्स्ट साइकिल में 2 वैल्यू मिल रही है। फर्स्ट साइकिल मतलब ये पूरा ना, तो ये पूरे में 2 बार वैल्यू आ रहा है, एक 0 पे भी और पाई पे भी, दोनों ही केस में आपका साइन x 0 होगा। यानी 0 और पाई, ये जो 2 वैल्यू आए हैं ये फर्स्ट साइकिल के,
बाकी सारे वैल्यूज कितने के हैं सर, अलग अलग साइकिल्स के, है ना। तो सर ये वाला जो है वो थर्ड साइकिल का होगा, ये देखो ये वाला सेकंड साइकिल का, है ना, ये वाला थर्ड साइकिल का होगा, एंड सो ऑन। आई होप इट इज अंडरस्टूड। पक्का। तो ये हमारा फर्स्ट साइकिल का वैल्यू है। मैंने अभी भी क्या बोला, साइन एक्स को जीरो होने के लिए कम से कम या तो जीरो होना पड़ेगा या पाई होना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट साइकिल इज कंपलसरी ना, कम से कम एक साइकिल होगा ही होगा। तो यहाँ पे जीरो और पाई उसका कंपलसरी वैल्यू है, बाकी सारे हो सकते हैं, मेरी मर्जी पे है, मेरी मर्जी पे है। पर इस केस में मेरी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि एंगल बनाने के लिए मेरे को कम से कम एक साइकिल तो चाहिए ना, बराबर। तो याद रखो ये x क्या है, सोल्यूशन है, x क्या है, सोल्यूशन है। तो ये जो सोल्यूशन है इसका जीरो और पाई, ये सोल्यूशन, ये इसका मेन सोल्यूशन है। और ये जो सोल्यूशंस है ये मेरी मर्जी वाले सोल्यूशंस है ना, राइट। तो मैं इसको बोलूंगा प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या बोलूंगा, दिस इज माय प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट दीज आर माय जनरल सॉल्यूशंस, दीज आर माय जनरल सॉल्यूशन। उसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो सिर्फ इससे रिप्रेजेंट करूंगा। समझे कि नहीं समझे, मैं थोड़ा सा आप लोग को बोर्ड दिखा देता हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस, ये सारे में से ये वाले को हम यूज करेंगे एज अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, बराबर, पक्का। ये सब वैसे ही है, सिर्फ आपको m का वैल्यू बदलना है, ये मिलते चले जाएंगे। पर ये जो है ये वाला दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, बराबर। तो आज के बाद मैं ऐसा बोलूंगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल which come into first cycle are called as principal solutions। क्यों सर, क्योंकि वैल्यू ऑफ द एंगल को हम सोल्यूशन भी बोलते हैं। किसका सोल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन। वैल्यू ऑफ द एंगल को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल सोल्यूशन, दिस इज जनरल सोल्यूशन, एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू। क्लियर, राइट। प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन, सभी लोग लिखे। रिकॉर्डिंग पीपल विल पॉज द वीडियो एंड देन राइट, जस्ट पॉज योर वीडियो एंड राइट। यस बच्चा लोग, हेलो। सो इसका मतलब ये बात तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई अभी से कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, देखो ये पूरा चैनल समझो, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैनल वेल। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस चैनल इज वेरी स्पेशल। जो पूरा एक सीरीज है ना, उस सीरीज को समझो। क्या सर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर दिया है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब एंगल का वैल्यू मिलेगा। तो ये एंगल का वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, मतलब सोल्यूशन के वैल्यूज भी इनफाइनाइट होते हैं। अब ये जो इनफाइनाइट वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ साइकिल पे। तो कौन से हम साइकिल में है ये डिसाइड करता है, हम कौन से साइकिल में है ये डिसाइड करता है कि उस एंगल का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो सोल्यूशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब जितने भी सोल्यूशंस हमारे पास होते हैं, अगर मैं सबको एक साथ लिख दूं, तो उन सारे सोल्यूशंस में से वो सोल्यूशंस मतलब वो एंगल्स जिनका वैल्यू फर्स्ट साइकिल के अंदर होता है। फर्स्ट साइकिल के अंदर मतलब सर, मतलब 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता है। फर्स्ट साइकिल मतलब पूरा घुमा के आ गया 0 से 360 डिग्री, मतलब 0 से 2 पाई। जिनका वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होता है, those all the values of angles, those all the solutions are called as principal solutions of equations। उसको छोड़कर बाकी के जो होते हैं उन सबको हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जनरल फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हमने टीएल पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस सीरीज में हमने टीएल लिखना सीखा था, है ना, वैसे हम यहाँ पर भी टीएल लिखते हैं। टीएल का मतलब कैसा होता है सर, जैसे 2mx लिख दिया, mx लिख दिया, mn लिख दिया, मर्जी है हमारा, m π/2, 2m π/2, ये सारे नोटेशंस हम यूज किया करते हैं, ठीक है, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड एज जनरल सोल्यूशन। अगले लेक्चर में हम इसी प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे। यानी कि हमारा इस पूरे चैप्टर का जो 3 पार्ट्स है, उसमें से जो पहला पार्ट है वो है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एनी ट्राइंगल, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसका जो पहला सेक्शन है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस, वो 2 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ये कैसे आते हैं ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया,
ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंगली जनरल सॉल्यूशंस को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये अगला लेक्चर अभी जस्ट शुरू होने जा रहा है। ठीक है, सी यू इन दैट मोड। We will be from here continuing with a very special topic called as principal and general solutions। हम लोगों ने क्या किया था पिछले लेक्चर में, देखने की कोशिश की थी कि प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको कहते हैं, जनरल सोल्यूशन किसको कहते हैं, छोटा सा आइडिया लेने की कोशिश की थी। हम लोग वहीं से आज आगे का एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, बट बिफोर वी एक्सटेंड देयर लेट मी पुट फ्यू थिंग्स ऑन बोर्ड वेरी क्विकली, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको फटाफट कोऑपरेट करें और मुझे देख करके बताएं कि एग्जैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हियर वी गो, आई एम जस्ट पुटिंग द बोर्ड ऑन। Let us understand this board का part over here. Yes, so we'll try to see, जैसे हमने देखने की कोशिश की थी कि एक्चुअली देखो यहाँ पर जरा देखना, मैंने अगर ये मैंने y एक्सिस बना दिया और ये मैंने x एक्सिस बना दिया, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसे मेरे पास y एक्सिस और x एक्सिस जनरेट हुआ और मैंने कोई एक इक्वेशन यहाँ पर लिखा, तो हमने देखने की कोशिश की थी कि अगर मैंने sin x इक्वल टू 0 लिखा सर, है ना, तो मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सम और अदर फॉर्मूला। और उसमें हमने कुछ और चीजें देखने की कोशिश की थी सर, क्या अगर मान लो यहाँ पर एक एंगल है, ये हमने किया था ऑलरेडी, और इसका मेजरमेंट 45 डिग्री है, तो देन इसका मेजरमेंट सिर्फ 45 डिग्री नहीं होता है ना, इट इज 360 प्लस 45। कैसे, अगर आप फर्स्ट साइकिल के अंदर बात करोगे तो 45 डिग्री, उसके बाद अगर आप बढ़ते चले जाओगे तो आपका पूरा का पूरा रोलिंग प्रोसेस चेंज होता चले जाएगा। अच्छा, इससे हम लोगों ने जो देखने की कोशिश की थी वो ये था कि अगर मैं sin x इक्वल टू 0 को ध्यान से देखूं तो sin x कहाँ पे 0 होता है सर यहाँ पर sin x 0 होता है और यहाँ पर 0 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई वगैरह वगैरह, है ना, डॉट 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 डॉट। और इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, है ना, 7 पाई और बहुत कुछ इसके आगे, राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज। ओके, बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं sin x इक्वल टू 0 लिखूं तो sin x यहाँ पे और यहाँ पर 0 होगा सर। इसके लिए हम लोगों ने लिखा था, अगर याद होगा तो 2n पाई, और इसके लिए क्या लिखा था, इसके लिए लिखा था 2n प्लस 1 पाई। यस, लेकिन पूरे x एक्सिस के लिए हमने क्या लिखा था, पूरे x एक्सिस के लिए हमने लिखा था n पाई। याद आया कुछ, हमने पूरे x एक्सिस के लिए क्या लिखा था, n पाई, और हमने वो नोट भी यहाँ पर लिखा था कि x एक्सिस का मतलब क्या होता है, y एक्सिस का मतलब क्या होता है। जरा सुनो, sin x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करता हूं तो सर वो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब कुछ हो सकता है n पाई तक। कहां तक, n पाई तक। कौन, x, यानी कि x जो है वो 0 से लेकर के n पाई तक आपको sin x 0 देगा। गॉट इट। वैसे हमने cos x के लिए भी सीन देखा था, राइट, cos x कहां पे 0 देता है सर यहां पर 0 देता है, y एक्सिस के ऊपर, है ना। तो अगर मैंने cos x की बात की, cos x इक्वल्स टू 0, तो cos x सर कहां पे 0 देगा, cos x देगा पाई बाय 2 पे 0, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0, कैन यू सी दिस, फिर 5 पाई बाय 2 पे 0 एंड सो ऑन, है ना सर। कहां तक, ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो y एक्सिस का मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। x एक्सिस का मतलब होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, y एक्सिस का मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब यहाँ पे हमको जो बात समझनी है वो क्या है, जरा देखो, ठीक है। देखो मैं हाईलाइट करूंगा, ये जो एक 0 और पाई है x का, और उसके बाद यहाँ पे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 है, समझ रहे हो। इस केस में 2 पाई भी आता है, पर ठीक है, इस केस में जरा आप देखो पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक है ना। ये जो वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यू, ये फर्स्ट साइकिल की वैल्यू है, कैन यू सी दिस, ये फर्स्ट साइकिल की वैल्यू है, फर्स्ट साइकिल की वैल्यू। और उसके बाद की जो वैल्यूज है वो सब कौन सा, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, ऐसे है, राइट।
यस तो जो भी x का वैल्यू, जो भी एंगल का वैल्यू फर्स्ट साइकिल में होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज इन फर्स्ट साइकिल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सोल्यूशन, क्योंकि कम से कम एक साइकिल एंगल का पक्का होगा। सेकेंड साइकिल लेना है कि नहीं लेना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बट फर्स्ट साइकिल गारंटीड है। हम लोगों ने यही प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है, हम जो भी एंगल का वैल्यू निकालते हैं सॉल्व करके, क्या सॉल्व करके? ट्रिगो इक्वेशन को सॉल्व करके, उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। तो इट इज ट्रिगो सोल्यूशन। पर उस ट्रिगो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सर वो तो एंगल होता है। तो एंगल जो है जब मैं फर्स्ट साइकिल में मेजर करूंगा, सेकंड साइकिल में मेजर करूंगा, थर्ड साइकिल में मेजर करूंगा, फोर्थ में मेजर करूंगा, तो सब में अलग अलग आएगा। तो जो फर्स्ट साइकिल के एंगल्स होंगे, जो फर्स्ट साइकिल के एंगल्स होंगे, दोज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल सोल्यूशन। जो फर्स्ट साइकिल के एंगल होंगे दोज विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सोल्यूशन। जो सेकंड साइकिल के एंगल होंगे, जो थर्ड साइकिल के होंगे, जो फोर्थ साइकिल होंगे, सबको मिला देंगे हम लोग, तो दैट विल बिकम जनरल सोल्यूशन। ओके, तो हमारा सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सोल्यूशन। प्लीज नोट दिस डाउन क्विकली। ये एक एग्जाम्पल है जो हमको समझना है, तो तुम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल टाइटल डाल सकते हो, एग्जाम्पल लिख के फिर ये पूरा लिखो, और उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन, और फिर ऐसा दो एरो मारना। मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के बाद आप लिखोगे ट्रिगो सोल्यूशन, ट्रिगो सोल्यूशन, ठीक है? ये दो टाइप के होते हैं सर, कौन से कौन से कौन से? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और जनरल, प्रिंसिपल और जनरल, ऐसा। यस, प्रिंसिपल जो है वो हमेशा 0 से लेके 2 पाई के बीच में रहता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल हमेशा उसके बाहर होता है। प्लीज नोट दिस डाउन क्विकली, नोट दिस फास्ट। रिकॉर्डिंग वाले पॉज करके नोट करेंगे, बाकी लोग नोट कर लें। Now as we know that trigonometric solutions यानी trigonometric angles that we get actually, तो angles can be from first circle or they can be from multiple circles. So एक trigonometric equation अगर मुझे दिया गया और मैंने उसमें से solution निकाला, तो that trigonometric solution जिसको हम angle बोल रहे हैं बार बार, है ना, that can be either of two types, either it will be principal or it will be general. तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक डेवलप करते हैं जिसकी मदद से हम प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन समझ लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी, पर ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी, जो मैं तुम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो बहुत सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी आगे चल के। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम sin x का ग्राफ बनाएंगे। क्लियर, राइट? और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दूंगा, बिकॉज 11th में आप लोग बहुत सारा ग्राफ बना चुके हो। एनीवे, जस्ट लुक हियर, अगर मुझे sin x का ग्राफ बनाना है तो मैं यहाँ पे y एक्सिस बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, याद होगा आप लोगों को। और इसके सेंटर में यहाँ पर मैंने मान लो 0 बोल दिया, दिस इज 0, राइट? सो दिस इज 0, तो यहाँ से एक इस तरह से एक लाइन जाएगी, दिस इज वेरी स्पेशल लाइन, राइट? सर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है सर? एक्स का वैल्यूज यहाँ पर होगा। सर एक्स कौन है? एंगल, तो सारे एंगल के वैल्यूज यहाँ पर होंगे। तो यानी शुरुआत सर यहाँ से होगी, ये 0 होगा, उसके बाद सर हम यहाँ पर आएंगे, ये π/2 होगा, है ना? फिर सर ये पाई होगा, फिर उसके बाद ये 3π/2 होगा, है ना? और उसके बाद ये 2 पाई होगा, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। ध्यान देना आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, है ना? तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो दिस विल बिकम 5π/2, है ना? और थोड़ा आगे जाओगे तो दिस विल बिकम से 6 पाई यानी कि 3 पाई, 6π/2 यानी कि 3 पाई ना। फिर उसके बाद और आगे जाओगे, है ना, तो यू विल गेट हियर 7π/2, सर ये 7π/2 मिल गया। और आगे जाओगे तो 8π/2 विच इज नथिंग बट 4 पाई, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। इट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बराबर है? अच्छा, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है सर वो +1 होता है।
मतलब अगर यहाँ पर मान लो ये +1 है ना, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ पर थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ मैं, से यहाँ पर -1 होगा। यू गॉट दिस वैल्यू, +1 एंड -1। चलो जरा सिचुएशन को समझते हैं, है ना, और ग्राफ बनाते हैं। राइट, देखो जरा, ये जो है मेरा, ये 0 से π/2, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कैन यू सी दिस, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसी तरह से जब मैं यहां पर जाऊंगा तो ये दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद में ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइनली ये क्या है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। राइट, यस कि नो, पक्का। मैं इसके आगे का मैप नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद ही कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए वो, तुम्हारे लिए वो, है ना। राइट, चलो शुरू करते हैं। सर साइन का वैल्यू, साइन x जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 रहेगा, जब मैं π/2 पुट करूंगा सर तो इधर +1 हो जाता है, जब मैं पाई पुट करता हूँ तो वापस 0 होता है, जब 3π/2 पुट करता हूँ तो -1 हो जाता है, और फिर यहाँ पे वापस 0 हो जाता है। बराबर, चलो ग्राफ बनाते हैं। और साइन का ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता ना, कर्व होता है। तो कर्व कैसे बनेगा, देखो कर्व मैं बना रहा हूं तो ऐसे, फिर यहां से ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, है ना। साइनस का ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, साइनस का ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अच्छा, यही ग्राफ आगे कंटिन्यू भी होगा, मैं लाइन नहीं भी बनाऊंगा तो आप लोग बना लोगे, है ना। राइट, मान लो ये मेरा एक फंडा है, तो ये मेरा ग्राफ सर आगे जब कंटिन्यू होगा तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से सर वो ऐसा वापस होएगा, है ना, और फिर यहाँ से नीचे आएगा सर ऐसा कुछ, और फिर यहाँ से वापस ऐसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। थोड़ा सा मैंने इसको स्टीप बना दिया, नो प्रॉब्लम, you'll experience it in the better way, this is better, right, yes। ये हमारा ग्राफ है, मैंने दो साइकिल्स लेने की कोशिश की, ये मेरा फर्स्ट साइकिल है, ये मेरा सेकंड साइकिल है। राइट, ग्राफ खुद को रिप्लिकेट कर रहा है, मतलब साइन इज रिपीटिंग द वैल्यू इन द सेकंड साइकिल अगेन। अब जरा देखो, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब देना है तुम लोगों को। मैं अगर बोलूं कि अच्छा एक बात बताओ, साइन x 0 कब कब होता है, मतलब साइन x इक्वल टू 0 कब कब होता है, तो आप क्या बता सकते हो। अभी भी हम लोगों ने देखा कि सर x की वैल्यूज है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है बोलो, जब जब 0 है तो सर 0 है, सर पाई है ना, यस कि नो, पक्का। तो साइन x इक्वल टू 0 जो है वो कब कब होता है सर, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, एंड सो ऑन। राइट, तो मतलब आप लोग जानते हो कि x इक्वल्स टू n पाई के ऊपर साइन x का वैल्यू 0 होता है। तो जब भी मैं आपको साइन x इक्वल टू 0 बोलूंगा तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई, कोई दिक्कत नहीं ना, x इक्वल टू n पाई, वेरी सिंपल वैल्यू, है ना, ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा सर जनरल फॉर्म तो हो गया, हाउ अबाउट प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ये हो जाएगा 0 to 0 n पाई, 0 n पाई, तो ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन है, और n पाई जो है, n पाई ये जनरल सोल्यूशन है। आई होप इट इज क्लियर, साइन x इक्वल्स टू 0 पे 0 पाई प्रिंसिपल सोल्यूशन है और जनरल सोल्यूशन है n पाई। अच्छा मेरा एक सवाल, मुझे एक बात बताओ, साइन x इक्वल टू 0 तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन tan x इक्वल टू 0 कब होता है, जब जब साइन 0 होगा, जब जब साइन 0 होगा, क्या क्या 0 होगा, जब जब साइन 0 होगा तब तक क्या क्या 0 होगा सर, सर जब जब साइन 0 होगा मेरा tan x भी 0 होगा, यस और नो। जब कभी भी साइन x 0 होगा तो मेरा tan x भी 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर है ना, इसमें किसी को डाउट है। जब भी मेरा साइन x 0 का tan x क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज tan x इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, न्यूमरेटर 0 होता है कि नहीं, tan x क्या है, tan x इक्वल्स टू साइन x बाय कॉस x, है ना। राइट, तो जब भी साइन 0 होगा तो 0 अपॉन कॉस मिलेगा। और एक बात याद रखो, साइन और कॉस का ग्राफ आप लोगों को याद होगा, कॉस का ग्राफ यहां से शुरू होता है, मालूम है कि नहीं, यहां से। तो कॉस का ग्राफ मैं रेड कलर से बना देता हूं, ये देखो दूसरे कलर से बना देता हूं कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ देखो यहां पर बनेगा, ये रेड वाला कॉस का ग्राफ है, ऐसा आता है, याद है। और फिर यहां से हम जाते हैं आगे की तरफ, ऐसा आता है, और फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है, और यहां से भी हम आगे बढ़ते हैं, यही ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन जाता है, गेटिंग इट।
ये सुनो, ये मेरा कॉस्ट का ग्राफ है फर्स्ट साइकिल के अंदर, और फिर मेरी मर्जी है, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, इसको बढ़ाऊंगा तो यही ग्राफ जो है वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और यहां से फिर से वो ऐसा हो जाएगा, और आगे बढ़ाऊंगा तो ये फिर से ऐसा ऐसा हो जाएगा। गेटिंग इट? देखो वी जैसा कुछ दिखेगा आप लोगों को, आई होप इट इज क्लियर है ना, ऐसा उल्टा टोपी, उल्टा टोपी है ना, और थोड़ा सा शिफ्टेड। यस, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉस, रेड वाला कॉस है। तो अभी देखो tan x कब कब जीरो होगा, जब तक साइन से, जब साइन जीरो होगा, यानी tan x के लिए भी सेम वैल्यू वैलिड है। यस सुनो, tan x के लिए भी सेम वैल्यू वैलिड हो गया। तो tan x कब कब जीरो होता है सर, जब जब x का वैल्यू n पाई होता है। यस सुनो पक्का। सर जरा कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस की, देखो बच्चा लोग कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस की बात करोगे तो cos x कब कब जीरो होता है, cos x कब कब जीरो होता है, देखो cos यहाँ पे फुल है, यहाँ पे जीरो है, यानी पाई बाई टू पे, यानी x इक्वल्स टू पाई बाई टू। फिर उसके बाद ये देखो इधर आया 3 पाई बाई टू, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, ये देखो कैन यू सी दिस, ये रेड वाला ग्राफ देखो, रेड वाला 3 पाई बाई टू, ये इधर आया, फिर 5 पाई बाई टू, अच्छा 5 पाई बाई टू है ना, एंड सो ऑन। ये कहां तक 2n प्लस 1 पाई बाय 2। मेरी बात को समझना, मैं क्या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। x का दो वैल्यूज, कौन सा वैल्यूज, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट साइकिल के अंदर है, ये वाला, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, और बाकी के सारे वैल्यूज किधर है, बाहर है ना, यस कि नो, बाकी सारे वैल्यूज बाहर है। अगर आप इसको और भी ज्यादा आगे एक्सपैंड करते हो तो यू विल गेट दिस इक्वल्स टू 2n प्लस, तो ये जो है ये cos x का जनरल सोल्यूशन, cos x इक्वल्स टू 0 का जनरल सोल्यूशन हो गया। तो sin x इक्वल टू 0 का प्रिंसिपल सोल्यूशन ये दोनों जनरल सोल्यूशन, ये tan x इक्वल्स टू 0 का प्रिंसिपल सोल्यूशन ये दोनों। आप लोगों को दिख रहा है क्या, ये देखो, ये देखो ये है ना, और जनरल सोल्यूशन ये। अच्छा उसी तरह से मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आ जाओ, cos x इक्वल्स टू 0 के लिए ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन ये। अच्छा cos x जब भी 0 होगा तो मुझे बताओ और कौन कौन 0 होगा सर, और cot x भी 0 होगा, cot x भी 0 होगा, तो cot x का भी सेम सीन होगा, एंड सो ऑन, कब तक 2n प्लस 1 पाई बाय 2 तक, बराबर ना। तो इसका भी प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन ये, ध्यान रखना cot x का प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है ये, cot x इक्वल टू 0 का प्रिंसिपल सोल्यूशन है। यहाँ पे भी sin x का प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है ये, sin x इक्वल टू 0 का ये प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन है। tan x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन तब होगा जब इक्वेशन बन जाएगा, जब तक इक्वल टू समथिंग नहीं आता तब तक सोल्यूशन की बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे cot x इक्वल टू 0 का फंडा हमारे पास क्लियर हो गया, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। कौन सा जनरल सोल्यूशन है, कौन सर, ये जनरल सोल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल ड्रॉ द ग्राफ जल्दी से। और एक बात और बता दूं, कोसेक और सेक कभी 0 नहीं होते, ध्यान देना, कोसेक और सेक कभी भी 0 नहीं होते, याद होगा तो। कोसेक का ग्राफ ऐसा बनता है, ऊपर 1 के ऊपर, हमने 11th में किया है वो, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जिनको चाहिए उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक 11th की वीडियोस बना रहा हूँ, उसका रेफरेंस भेज दूंगा, वो रेफरेंस आप लोग देख सकते हो, बाद में डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं डाल दूंगा एक बार उसको अपलोड होने के बाद में, तब तक आप लोग ये कर लें, फटाफट करो, बी क्विक, नोट दिस डाउन। जो सर्कल में लिखा है वो जनरल सोल्यूशन है, जो अंडरलाइन किया वो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, क्विकली। Recording people will pause the video and then write. So
This is very important diagram, a very important concept which you have to note somewhere very seriously. Okay, now hereforth we are landing up to the next topic, which is again very special, right? As discussed by us, trigonometric equation has got two types of solutions. And we knew that this chapter, which we have started, trigonometric functions or identities, whatever you call it as, this chapter is actually divided into three parts. The first was trigonometric equation ka solution, right? So solution of trigonometric equation. Second part is the sine rule, cosine rule, projection rule, and all those things. Matlab application of trigonometry into any triangle. That is second part. And the third part is going to be the inverse trigonometric function. राइट तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट के साथ में डील कर रहे हैं, बाकी दोनों पार्ट के साथ में हम बाद में डील करेंगे. तो जो हमारा पहला पार्ट है उसमें मैं आप लोग को बताने ये जा रहा हूं कि आपको सम्स कैसे दिए जाएंगे. ठीक है, किस तरह के सम्स दिए जाएंगे और उनको कैसे देखना है. ठीक है, अभी तक हमने सारी बेसिक्स की, समझने की कोशिश किया कि एंगल क्या होता है, कैसा होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन किसको बोलते हैं, ट्रिगो कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है. अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक्चुअली आपको किस टाइप का सम दिया जाएगा. ठीक है, चलो देखते हैं कि किस टाइप का सम दिया जाएगा. देखो जरा मैं बता रहा हूं, सबसे पहला टाइप जो होगा वो क्या होगा, वो ऐसा कुछ होगा. ये देखो, टाइप 1, ए का 1. मैंने ए क्यों बोला मालूम है ना, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की, राइट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगो इक्वेशंस. तो वो ए हो गया. बी सी हम बाद में देखेंगे. ए का फर्स्ट टाइप, ठीक है, कैसा होगा, आप लोग को ऐसे दिया जाएगा. देखो मैं लिख रहा हूं, आप लोग को कोई तो एक यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, कोई तो एक वैल्यू दी जाएगी, इक्वल टू 0 दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा, व्हाट आई एम आस्किंग, आपको यहाँ पर कोई एक वैल्यू दी जाएगी और इक्वल टू 0 दिया जाएगा और बोलेंगे एक काम करो उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ, एक काम करो उसका जनरल सोल्यूशन बताओ. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन, उसका जनरल सोल्यूशन आपसे पूछेंगे. तो सबसे पहले क्या देंगे आपको देंगे यहाँ पर ट्रिगो इक्वेशन, या एक काम करता हूं, ट्रिगो एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर. ट्रिगो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, ऐसा देंगे और बोलेंगे इसका आप एक काम करिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालिए. क्या क्या निकालिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालिए. बहुत सिंपल काम है, अपने को पता है ऑलरेडी कि कैसे निकलता है. यस कि नो, समझ रही बात. इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालने को आपको देंगे. दिस इज टाइप 1. टाइप 2 क्या होगा सर, टाइप 2 क्या होगा, देखो टाइप 2 भी दिखा दूं. टाइप 2 मैं भी दिखा देता हूं, वैसे तो दिखाना मुझे नहीं था बट ठीक है. टाइप 2, ये देखो, लुक हियर, ट्रिगो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हियर. यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो कोई यहाँ पर कांस्टेंट दिया जाएगा पहले से, है ना, नहीं तो फिर अगर कांस्टेंट ना दिया जाए तो इसके बदले में ऑलरेडी एक ट्रिगो एक्सप्रेशन दिया जाएगा. सर क्या बोल रहे हो आप, यहाँ भी ट्रिगो एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी, हाँ, बस खाली फर्क इतना होगा कि इस ट्रिगो एक्सप्रेशन का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इस ट्रिगो एक्सप्रेशन का कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा. ठीक है, बराबर है ना, राइट. तो या तो वो ट्रिगो एक्सप्रेशन, एग्जांपल मुझे ऐसे देना होगा तुमको, sin x इज इक्वल्स टू sin 30. कैन यू सी दिस, यस ना, ये एक्सप्रेशन ऐसा वाला हो गया और sin 30 मतलब कांस्टेंट. तो या तो मैं तुमको ऐसे दे दूंगा क्वेश्चन, या फिर ऐसे बोल दूंगा 1/2. ये देखो, चाहे ऐसे दे दूं चाहे ऐसे दे दूं, मर्जी है, दोनों में से किसी भी तरीके से दूंगा तो हम टाइप 2 में आ जाएंगे. कहां पर आ जाएंगे, टाइप 2 में. इसमें भी आपको निकालना एक्चुअली प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, इसमें भी है, इसमें भी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है. बहुत सिंपल काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, बट ये आपको करना पड़ेगा. क्लियर सर. इसका एग्जांपल दीजिए ना, इसका एग्जांपल, ये वाले का देखो, ये वाले का एग्जांपल देता हूं मैं, जस्ट लुक हियर. सर हमने एक एग्जांपल तो सीखा हुआ है, sin x इक्वल टू 0, कितना आसान है ना. लेकिन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी ऐसा आता है, साइन ऑफ
x प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं समझे? पक्का? अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा थीटा हो गया, तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बराबर? तो साइन एक्स इक्वल टू 0 एक सिंपल फॉर्म हो गया जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन हमको याद है, राइट? पर जब ऐसा आ जाएगा तो फिर आपको उस चीज को प्रोसेस करना पड़ेगा आगे चल के। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वी पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके लिए टाइप 2 के लिए मैं आप लोग को फॉर्मूले सिखाऊंगा। पहले हम टाइप 1 के सम्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने का कोई टेंशन ही नहीं है, बड़े आराम से प्रिंसिपल सोल्यूशन निकलता है। एक्चुअल चैलेंज आता है जनरल सोल्यूशन निकालने में। ठीक है, तो हम जनरल सोल्यूशन के ही फॉर्मूले देखने समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन तो हमारे लिए 2 मिनट का काम है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 लिखो उसका एग्जाम्पल लिखो, टाइप 2 लिखो उसका एग्जाम्पल लिखो। प्लीज राइट, जस्ट राइट इट, जल्दी से लिखो। फटाफट लिखो। Recording people will pause the video and then write. Before we start solving the entire set of sums over here, let us try to understand the pattern given. यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ तो दे रखा है। क्या दे रखा है? It is cos theta is equal to 1/2, मतलब constant, type 2, याद है ना? cos theta is equals to 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और ये कांस्टेंट है। दिस इज टाइप 2। वैसे यहाँ पर भी है sec theta is equals to 2/√3, अगेन टाइप 2, बिकॉज इट इज, अगर यहाँ पे 0 होता 0 तो हम इसको टाइप 1 बोलते हैं, राइट? अच्छा, cot theta is equals to √3, ये भी टाइप 2। अच्छा सर, टाइप देखो, ये टाइप 1 है, cot theta is equals to 0। सर क्या हम टाइप्स में फंस जाएं? क्या हम टाइप्स को याद रखें? बिल्कुल भी नहीं। तो सर आपने टाइप क्यों बताया? ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो सके। सर बाई चांस हमको टाइप भूल गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर टाइप को याद क्यों रखना है? ताकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाए। टाइप को याद रखना है, याद करना नहीं है, ध्यान देना है, 2 अलग अलग बातें हैं। याद करते नहीं बैठना सर ये टाइप का सम कि वो टाइप का सम, बिल्कुल नहीं। आप सम सॉल्व करो, सॉल्व करते वक्त सोचो, एक बार सोच लो बस ऐसे ही, यानी कौन से टाइप का है, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसलिए मैंने पहले लिखा दिया टाइप के साथ में सम्स नहीं कराए। ठीक है, खाली ऐसे देखो तो सोच लो एक बार कि कौन सा टाइप है, ऐसे देख लेते हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर? मैं कह रहा हूं इसलिए करना है सर, लॉजिकल रीजन क्या? कुछ नहीं, इलॉजिकली करना है, लेकिन करना है। टाइप 2, ये भी टाइप 2, ये भी टाइप 2, सर ये टाइप 1, खत्म। इतना इतना, इसके आगे नहीं सोचना है। अब क्या सोचना है बता रहा, ये देखो, cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ है, पक्का है ना? सर अब हम लोग जरा इसको सॉल्व करते हैं, है ना? हमको क्या निकालने बोला है? प्रिंसिपल सोल्यूशन, पक्का ना? प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो देखो मैं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखो। हाफ कब कब आता है? हाफ cos थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है? अगर आपको याद होगा तो ये देखो, ऐसा रहता है ना हमारा वैल्यू, तो cos थीटा यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल होता है। याद है कुछ? cos थीटा यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल होता है। अलाइड एंगल का फॉर्मूला याद होगा, अगर अलाइड एंगल का फॉर्मूला याद होगा थोड़ा सा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब कब आता है सर? सर cos 30 पे आता है कि cos 60 पे आता है? cos 30 पे आता है, cos 60 पे? सर cos 60 पे। अच्छा आप इसको 60 मत लिखो सर, तो आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपको आदत है ना डिग्री का, इसलिए मैंने लिख दिया। आज के बाद डिग्री में लिखने का कोशिश हम नहीं करेंगे, तो सर हम कैसे लिखेंगे? ये देखो मैं लिखना सिखा रहा हूं, आप लिखोगे cos π/3, ठीक है, बराबर? cos π/3 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और एक चीज का वैल्यू 1/2 होता है क्या? और cos 2π - π/3, याद करो, याद करो, याद करो, ये दोनों जगह पर cos का वैल्यू सेम होता है, बराबर ना? तो अगर मान लो यहां पे ये थीटा है, तो यहां पर ये अगर थीटा होगा
तो कॉस का वैल्यू सेम होगा। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, 0 प्लस थीटा, और इसको नीचे वाले को क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, तो या तो आप इसको माइनस थीटा बोल दो या तो फिर 2 पाई माइनस थीटा बोल दो। एलाइड एंगल का कंसेप्ट है, एलाइड एंगल का फॉर्मूला, एलाइड एंगल में ये आता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है एलाइड एंगल का। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस थीटा, याद होगा ये फॉर्मूला, तो बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख दे रहा हूँ, देख लो अलाइड एंगल के ये फॉर्मूले अब सब लोग अपने अपने दिमाग में बिठा लेंगे। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला बहुत खास है, मैंने तुम लोगों को लेक्चर सेकंड या थर्ड लेक्चर में इसको याद करने के लिए बोला था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने याद नहीं किया होगा, मैं इसलिए फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ। और ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहला फॉर्मूला था साइन थीटा का, तो साइन थीटा कहाँ कहाँ सेम होता है सर, साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम होता है, क्योंकि साइन थीटा का मतलब वाई एक्सिस होता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा, ये फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस थीटा। तीसरा फॉर्मूला है tan थीटा, tan थीटा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में सर पाई प्लस थीटा, याद कर लो इस चीज को। हम लोग यहाँ पे रेफरेंस हमेशा एक्स एक्सिस को पकड़ेंगे। ठीक है, मैं पाई बाय 2 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पाई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाई और 2 पाई की बात कर रहा हूँ। पाई बाय 2 हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, एलाइड एंगल में पाई बाय 2 भी आता है, पर मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी पाई बाय 2 यहाँ पर या यहाँ पर आएगा, तो साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस विल बी कन्वर्टेड टू साइन, टैन विल बी कन्वर्टेड टू कॉट, कॉट विल बी कन्वर्टेड टू टैन, ये लॉ है। ठीक है, बराबर, तो याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पर साइन कॉस टैन हो गया सर, है ना, चलो उल्टा जाते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इट विल बिकम कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, उसका भी सेम लॉ है सर, सेक 2 पाई माइनस थीटा। और छठा फॉर्मूला कोसेक, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके सॉल्व कर लें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं तुम लोगों को ये सब फॉर्मूला इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री एकदम स्ट्रांग हो जाए, पूरे चैप्टर में ये सारी चीजें लगने वाली हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूले व्हिच यू विल नीड टू राइट एंड रिमेंबर देम। ओके, हम यहाँ पे आ रहे हैं, अभी देखो cos पाई बाय 3 और cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब cos थीटा और cos 2 पाई माइनस थीटा दोनों सेम सेम होते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर cos थीटा का वैल्यू ये है और ये है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो cos थीटा cos पाई बाय 3 होगा, या फिर cos थीटा cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, यस और नो। तो चलो देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, है ना, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, और cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 5 पाई बाय 3। सर ये कहां से आया, 5 पाई बाय 3 कहां से आया, ये 5 पाई बाय 3, 3 2 6 माइनस 1 5, 5 पाई बाय 3, क्लियर। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो cos थीटा का हमको ये वैल्यू मिल गया, कैसे मिला अभी समझ में आ रहा है। हम और सम्स करेंगे यहाँ पे, sec थीटा भी अभी करने वाले हैं, बट उसके पहले आप लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये सम सॉल्व करेंगे, और उसके बगल में ही कहीं पर किसी और कलर के पेन से या बॉक्स से ये चीज में लिखना है आपको, और लिख के इसको हाईलाइट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। इसी के बेसिस पे हम जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं, सो माइंड इट, ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डू इट क्विकली। इसका अगर आप लोगों को शॉर्टकट जानना है तो मेरे वो पुराने वीडियो में अवेलेबल है, जिसमें मैंने इसके सारे शॉर्टकट्स बता रखे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये कर ले क्विकली, जस्ट डू इट।
सर आपका म्यूट बंद है। सर आपका माइक बंद है। Here we have right sec theta is equals to sec pi by 6 जैसे आपने किया तो ये इस पे रुकना नहीं है। क्यों रुकना नहीं है? बिकॉज sec theta का एक वैल्यू एक ही साइकिल के अंदर 2 बार आता है, तभी तो ये लॉ बना हुआ है ना। ये लॉ हमको बताता है कि द सेम वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज रिपीटेड एटलीस्ट ट्वाइस इन द गिवन साइकिल। तो चलो ठीक है सर, एक तो पाई बाय 6 हो गया, दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 होगा, और सेक 2 पाई माइनस पाई बाय 6 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 और 11 pi by 6, and that's all. This is the principal solution. Getting it or not? I suppose you people are understanding this part. Clear? देख लो, cos और sec same. तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। अगला तुम लोग करोगे cot थीटा वाला, पहले ये करो फिर cot थीटा वाला करो। थर्ड मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला है, सो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, आप लोग अपने बुक में करिए। cot थीटा इज इक्वल्स टू √3 खुद से करना है, इट्स वेरी सिंपल, इज इक्वल्स टू and this is your principal solution. जल्दी करेंगे। फोर्थ सम नाउ, cot थीटा इज इक्वल्स टू 0। cot थीटा कहाँ पे 0 होता है सर? cot थीटा कब 0 होता है? जब cos 0 होता है। cos कब 0 होता है सर? y एक्सिस के ऊपर, मतलब सर, मतलब पाई बाय 2 पे पॉजिटिव y एक्सिस पे cos 0 होता है और नीचे भी 0 होता है ना, यानी 3 पाई बाय 2 पे, और cot 3 पाई बाय 2। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा तो बहुत इजी है ना। तो उसके हिसाब से अगर आप जाते हो, देयरफॉर आपके थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? इट विल बी पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। दिस इज व्हाट यू हैव, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। सो फाइनली cot थीटा इज इक्वल टू 0 आपको ये दे देगा, ठीक है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। दैट्स ऑल। प्लीज राइट इट डाउन क्विकली, एकदम फटाफट लिखो, बिल्कुल तेजी होनी चाहिए, एकदम फास्ट स्पीड में लिखो। One very important point that we need to understand here is question number 1 जो है उसकी एक खासियत क्या है कि इसके जो तीनों क्वेश्चंस है ना, तीनों टाइप 2 के हैं। मतलब cot theta is equals to constant, cot sec theta is equals to constant, cot theta is equals to constant। ये जो मिल रहा है आपको, ये equals to constant, जरा वो जो equals to constant यानी RHS है, इसका RHS हाफ है, इसका RHS 2/√3 है, इसका √3 है। इन तीनों RHS की एक खास बात है, बताओ क्या? इन तीनों RHS में एक खास बात है, बताओ क्या? ये तीनों RHS पॉजिटिव है। ये क्या है? ये 0 है, पॉजिटिव 0। तो तुमको ऐसा नहीं लगता क्या एक और चीज हो सकती है सर?
क्या? पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। ये सुनो, इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यही होगा, हम लोग उसमें भी cos थीटा इज इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर, मान लो यहाँ पे माइनस हाफ कर दूं, यहाँ पे -2/√3 कर दूं, यहाँ पे -√3 कर दूं, एक ही बात है। समझ में आ रही बात? क्लियर? राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप का होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को पॉजिटिव हमने यहाँ पे सीख लिया, जीरो यहाँ पे सीख लिया, नेगेटिव उसमें सीख लेंगे, बात खत्म। आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना 2 मिनट में आ जाएगा। आई होप इट इज अंडरस्टूड, राइट। चलो ये नोट कर लो, अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम यही करने वाले हैं, हम इसमें पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव इन तीनों को आपस में बैलेंस करना सीखेंगे। तो पॉजिटिव सीख लिया हमने, जीरो सीख लिया, इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें नेगेटिव सीखेंगे। Entire exercise 3.1 should be tried by your side. Next lecture onwards, we'll continue with the other questions ahead. Okay, chalo, take care. Good night. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, sir. Okay, sir.